Assalamu alaikum. Welcome to the hydraulic engineering presentation. So in this presentation we will present complex engineering problem. Okay. So complex engineering problem we will present Daimar Basha Dam project. So Ikra National University Department of Civil Engineering provide complex engineering problem on the basis of OBE for every student. Okay. So course title Hydraulic Engineering, course instructor Engineer Fawad Ahmad. So basically Engineer Fawad Ahmad provide us complex engineering problem. So there are three problem statement. Okay. So problem statement number 1, the construction of Daimar Basha Dam project. Problem statement number 2, the project area of Sindh Barrage project. Problem statement number 3, the construction of Kachi Canal project. So this is your choice. You can select any one. Okay. So I have select problem statement number 1, the construction of Daimar Basha Dam. Okay. So I have select this one. The construction of Daimar Basha Dam project will begin in couple of weeks on Indus River near Chilas, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit, Baltistan. Being the student of undergraduate civil engineering program, you are required to prepare video recorded presentation by keeping in mind the following critical question. Okay. So when we present this presentation, so here different question is available. Okay. So on the basis of this question, we present this presentation. So by keeping in mind the following critical question. So first question, describe the salient technical aspect of Daimar Basha Dam that will make it unique. Okay. Explain infrequently encountered issue related to Daimar Basha Dam. Discuss the role of diverse group of stakeholders involved in Daimar Basha Dam with widely varying needs. Analyze the benefit in detail that Pakistan will get from Daimar Basha Dam after the completion of its construction. So last one, critically analyze the significant consequences in a range of contexts, for example, environmental, socio-economics, after the commissioning of Daimar Basha Dam project. Okay. सो जब हम ये प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट करेंगे, सो ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम ये प्रेजेंटेशन हम कंटिन्यू करेंगे. So first of all, Daimar Basha Dam, a project report, Department of Civil Engineering, Ikra National University, Peshawar, submitted to Engineer Fawad Ahmad. Submitted by group member, there are basically two members, Ahmad Musa, another one, Muhammad Tay. So semester, sixth semester, section B, batch 2018-2022. So here picture about Daimar Basha Dam. ये basically हमारे पास Daimar Basha Dam की picture है. यहाँ located है Daimar Basha Dam between two mountains. Okay, you can see here. उसके अलावा हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन, सेकंड लोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम Daimar Basha Dam की हम इंट्रोडक्शन करेंगे शॉर्ट. उसके बाद हम लोकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास Daimar Basha Dam जो है वो कहाँ वाक़या है. ठीक है. सलाइन फीचर एंड Daimar Basha Dam प्रोजेक्ट. उसके बाद व्हाट मेक इट यूनिक, वो ऐसी कौन सी चीज़ें है जिसके ज़रिए ये डैम जो है यूनिक है. एनकाउंटर्ड इशू रिलेटेड टू Daimar Basha Dam, एंड फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इशू, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, रिसेटलमेंट प्लान, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान. ठीक है. सो लास्ट में हमारे पास जो है बेनिफिट ऑफ Daimar Basha Dam, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ Daimar Basha Dam. सो ये बेसिकली हमारे पास टॉपिक है. सो इन टॉपिक के मुताबिक हम प्रेजेंटेशन हम कंटिन्यू करेंगे.
ओके, सो ये हमारे पास जो है लोकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम करेंगे, उसके बाद हमारे पास लोकेशन जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो विदाउट वाटर इम्पॉसिबल है। जहाँ वाटर अवेलेबल है वहाँ ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो कर सकते हैं, और जहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ ह्यूमन जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो इट मीन दैट ह्यूमन लाइफ जो है वो टोटली डिपेंड अपॉन वाटर। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 25 ईयर से कोई भी बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट न हो सका सिवाय तरबेला और मंगला डैम की। उसके साथ साथ पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की वाटर की कमी महसूस हो रही है। अगर हम एक तरफ एग्रीकल्चर पर लैंड पे हम देखेंगे, एग्रीकल्चर पर्पस हमारे पास जो है, इधर हमारे पास डोमेस्टिक पर्पस, तो दोनों के लिए वाटर की कमी आ रही है। अब अगर हम इसी तरह बड़ी प्रोजेक्ट हमारे पास जो है इस पर हम काम करेंगे, तो एक तरफ हमारा अरबों डॉलर पैसे हम वेस्ट कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं। अगर हम दूसरी साइड पे हम देखेंगे, दूसरी साइड पे, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट आ रही है। ठीक है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास जो है इनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हम प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा एग्रीकल्चर लैंड जो है जिसमें डेवलपमेंट आ रही है। इसके साथ साथ और इसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम वाटर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब पाकिस्तान में ऐसी सीज़न है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अगर हम ये वाटर जो है हम स्टोर करेंगे, प्रॉपर इनके लिए हम प्लानिंग करेंगे, तो इससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं इस वाटर से। तो इस वाटर की बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, इससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी वसाइल का शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है। इंडिया की तरफ से जो दरें आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया मुसलसल इस पर डैम कंस्ट्रक्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो फ्यूचर में मुख्तलिफ मसलों का शिकार रही। और अयूब खान के दौर में तमीर होने वाली दो बड़े डैम जो कि मंगला डैम, इधर हमारे पास जो है तरबेला डैम, उसके बाद पाकिस्तान में जो है कोई बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट न हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान गुज़िश्ता की दहाइयों से इलेक्ट्रिसिटी की कमी महसूस हो रही है। और लोड शेडिंग हमारा मुकद्दर रहा। कलाबार डैम का मंसूबा जो है प्रोजेक्ट सियासत का नज़र हुआ और तमीर न कर सका। अगर ये डैम बन जाता तो पाकिस्तान की काफ़ी वसाइल कम हो सकती थी। हालांकि उस डैम की तामीर न होने के बावजूद उस मंसूबे पर अरबों रुपए खर्च हो चुकी थी। लेकिन आज हम दियामरबाशा डैम की प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। फ़ौरन काम का आगाज़ क्यों न हो सका, कौन कौन से इशू जो है वो आ रही है, और इस डैम की फ़वाइद के बारे में, उसकी बेनिफिट जो है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दियामरबाशा डैम की प्रोजेक्ट जो है पहली मरतबा 1980 की दौर में दहाई के आगाज़ में ज़ेर गौर आया। दियामरबाशा डैम का प्रोजेक्ट की दहाइयों से ज़ेर गौर से वापडा की ज़राए के मुताबिक इस डैम की फेसिबिलिटी रिपोर्ट की पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई, जबकि 2005 से 2008 से दोबारा इसकी फेसिबिलिटी और डिज़ाइन पर काम हुआ था। 2008 में जो कौमी तसादी कौंसल है, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें चारों सूबों और वफाकी की नुमाइंदगी होती है, उसने उस डैम की तमीर का बाकायदा इजाज़त दी 2008 में। और इसको ऐसा
प्रोजेक्ट करार दिया गया जिस पर किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं था। उस डैम की प्रोजेक्ट का एक से ज़ायद मरतबा सरकारी सतह पर इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद हो चुकी हैं, जिसमें उस दौर के मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत जो है उन्होंने शिरकत की है। उस प्रोजेक्ट का सबसे पहले इफ्तिताह 1998 में उस वक़्त की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था। साल 2006 में उस प्रोजेक्ट का दोबारा ऐलान सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। उस मौके पर इस वक़्त की वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने एक बार फिर उस डैम का इफ्तिताह किया, जबकि दियामर बाशा डैम का एक और इफ्तिताह 2012 पीपल्स पार्टी की दौरी हुकूमत में उस वक़्त की वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। अब जब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत आया तो वज़ीर आज़म इमरान खान आया है, तो उस डैम पर बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस प्रोजेक्ट पर टोटल फोकस है। वाबदा ज़राए के मुताबिक 2008 में इस डैम की लागत जो है वो 12 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 15 अरब डॉलर की करीब हो चुकी है। इस रकम को पाकिस्तान अपनी वसाइल से फराहम नहीं कर सकता, इसलिए तो उसने उस तवक्को थी कि आलमी इदारे जो है जैसा कि वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, आगा खान नेटवर्क ये सरमाया फराहम करेंगे, मगर जो नहीं ये मनसूबी शुरू हुआ, उस मनसूबे के साथ साथ इंडिया मनसूबे पर इतराज़ात उठा दी। दियामर बाशा डैम का बड़ा हिस्सा गिलगित बल्चिस्तान में तमीर किया जाएगा और इंडिया तवील मुद्दत से गिलगित बल्चिस्तान अपनी मामलिकत का दावा चला रहा है। इंडिया की मुखालिफ पर आलमी इदारों की सरमायाकारी रुक दी गई। उसके साथ साथ मगर 2012 और 2030 में उस वक़्त की हुकूमत की कोशिशें के बावजूद आलमी इदारे सरमाया की फराहम जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से NOC से मशरूत कर दी थी। अगर इंडिया को कोई इतराज़ न हो उसकी तामीर पर, फिर आलमी इदारी सरमाया फराहम कर दी गई। 2014 में इस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दावा किया कि आलमी इदारी डैम के लिए सरमाया देने के लिए तैयार है, मगर आमली तौर पर इस पर ऐसा नहीं हो सका। 2015 में नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत ने दावा किया कि उसने अपने वसाइल से 5.5 अरब की रकम से ज़मीन हासिल करना शुरू कर दी। ताहम इस वक़्त मकामी मुतसिरीन ने रकूम मिलने की तस्दीक नहीं की थी। 2016 में उस दौर की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए माशी जो पैकेज है उसको मंजूर कर लिया और हाकिम हुक्म दिया कि 2017 के एहतिताम से पहले उस मनसूबे पर काम शुरू किया जाए। 2017 में इस मनसूबे को चीन के साथ सिपेक में शामिल करने का बात हुई थी, इसलिए इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दी थी, मगर बाद में उस टेंडर को मनसूख कर दिया क्योंकि चीन की जो सख्त शराइत थी वो पाकिस्तान को काबिल कबूल न थी, इस वजह से सिपेक में शामिल न हो सका। उसके बाद 2018
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस वक़्त की चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत पाकिस्तान को एक डायरेक्टिव जारी किया कि मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कमी के लिए दयामर बाशा डैम की तामीर शुरू कर दी जाएगी। उस प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुश्तरका फ़ंड जारी किया गया, जो कि अभी 12 अरब से ज़ायद रकम अभी तक जमा हो गई। ज़राए के मुताबिक ज़्यादा फंडिंग जो है वो चीन फराहम करेगा। ये डैम पाकिस्तान के शमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान और KPK के सरहद इलाके बाशा में तामीर करना है। उसका कुछ हिस्सा KPK के अलावा कोहिस्तान और कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामीर में आता है। इसकी वजह से डैम का नाम दयामर बाशा डैम करार दिया गया। ये डैम दरिया सिंध पर तामीर किया जाएगा और इसके मुताबिक इसके 40 स्पेलवे तामीर की जाए। तो ये डैम दरिया सिंध पर तामीर किया जाएगा और वापडा के मुताबिक इसकी 14 स्पेलवे तामीर की जाए और 8.1 मिलियन एकड़ फीट वाटर की हमारे पास वाटर जो स्टोर होगी इस डैम में। इस पानी की ज़राअत एग्रीकल्चर पर्पस हमारे पास जो है ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वापडा के मुताबिक न सिर्फ KPK के अलावा डेरा इस्माइल खान और टांग की जो इलाका है उसका 6 लाख एकड़ एरिया जो है वो बंजर है, वो काबिल काश्त हो जाएगा। बल्कि मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट से 3 मिलियन एकड़ ज़रई रकबा ज़रई एरिया एग्रीकल्चर एरिया जो है इस मंसूबे से सैराब हो सकेगा। उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए 12 टरबाइन जो है वो लगाई जाएगी और हर एक टरबाइन जो है वो 375 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हासिल हो जाएगी और टोटल 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हासिल होगी। अच्छा, हम लोकेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास दयामर बाशा डैम जो है वो कहाँ वाक़ है। ठीक है, सो लोकेशन में बेसिकली हमारे पास दयामर बाशा डैम प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी लोकेटेड इन द इंडस रिवर 315 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ तरबेला डैम साइट। बेसिकली तरबेला डैम साइड अपस्ट्रीम डैम साइड अबाउट 315 किलोमीटर इंडस रिवर इज लोकेटेड। तो हमारे पास दयामर बाशा डैम जो है वो अपस्ट्रीम टू तरबेला डैम साइट 315 किलोमीटर इंडस रिवर इज लोकेटेड है। ओके, उसके बाद अबाउट 180 किलोमीटर बिलो द टाउन ऑफ गिलगित एंड अबाउट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चिलास। बेसिकली 180 किलोमीटर ये बिलो है, नीचे है द टाउन ऑफ चिलास। ये चिलास की जो टाउन है उससे 180 किलोमीटर बिलो अबाउट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चिलास। ये डाउन स्ट्रीम की तरफ आ रहे हैं चिलासी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ दयामर एंड गिलगित बल्तिस्तान। ओके, ये बेसिकली हमारे पास प्लेन है दयामर बाशा डैम की। तो यहाँ दयामर बाशा डैम जो है वाक़ है, ये ब्लू लाइन जो नज़र आ रही है ये वाला ये इंडस रिवर है। यहाँ तरबेला डैम जो है वो वाक़ है। तो अपस्ट्रीम तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन दयामर बाशा डैम। ओके, उसके बाद हम आते हैं दयामर बाशा डैम जो है उसके सलाइन फीचर, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास दयामर बाशा डैम जो है इसकी सलाइन फीचर क्या है। जिस तरह हमारे पास है इसका टोटल कितना एरिया कवर किया, इसका हाइट कितना है, इसका सरफेस एरिया कितना है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी, इसके साथ साथ ये कौन से टाइप की डैम है,
लोकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है इसका टोटल एरिया कितना है, 1,53,200 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये कौन से टाइप की डैम है, रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट ये डैम है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है इसका हाइट कितना है या इसका लेंथ कितना है रिजर्वायर। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इसका कितना है, 4500 मेगावाट, ये इसका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। ठीक है, टरबाइन इसमें कितने, 12 टरबाइन इसमें। ठीक है, उसके बाद इसका जो है मैक्सिमम हाइट कितना है, 272 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद फुल रिजर्वायर लेवल कितना है, 1160 MASL उसका फुल रिजर्वायर लेवल है। मिनिमम ऑपरेशन लेवल कितना है, 1060 MASL इसका मैक्सिमम ऑपरेशन है। लेव स्टोरेज कैपेसिटी इसका कितना है, 7.9 BCM ये इसका लेव स्टोरेज कैपेसिटी है। लेंथ ऑफ रिजर्वायर कितना है, 102 किलोमीटर इसका लेंथ ऑफ रिजर्वायर है। सरफेस एरिया इसका कितना है, 115.2 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है। स्टोरेज कैपेसिटी इसका कितना है, 3% ऑफ एनुअल फ्लो। एनुअल फ्लो जो आ रही है इसकी ये 3% है, 13% ये है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद नंबर ऑफ पावर हाउस जो है लेफ्ट एंड राइट जो है वो हमारे पास है 2। उसके बाद टरबाइन यूनिट कितने हैं, 12 यूनिट जो है। ठीक है, तो ये क्रस्ट लेवल 1170 MASL है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड वो इसमें आ रही है, वो हमारे पास है 4,94,170 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सलाइन फीचर इस डैम का जो है, डैमर बाशा डैम, ये इसका सलाइन फीचर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास डैमर बाशा डैम जो है ये यहाँ वाक़या है। ठीक है, ये इसका पिक्चर है, यू कैन सी हियर। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट मेक इट यूनिक, ऐसी कौन सी चीज़ें है जिसके ज़रिए डैमर बाशा डैम जो है ये यूनिक है। प्रोड्यूस 4800 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर जनरेशन, ये बेसिकली 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करती है, हाइड्रो पावर जनरेशन। ओके, उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा स्टोरेज इसमें कितना है, 10.5 क्यूबिक किलोमीटर ये वाटर स्टोर कर सकते हैं। वाटर फॉर पाकिस्तान दैट वुड, ये इसके साथ यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस, अनदर हमारे पास है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। कितना एक्स्ट्रा, 10.5 क्यूबिक किलोमीटर इतना वाटर जो है वो स्टोर कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एक्सटेंड द लाइफ ऑफ तरबेला डैम। अच्छा, ये बात इट इज़ इम्पोर्टेंट। जिस तरह हमारे पास तरबेला डैम है इसका लाइफ जो है वो एक्सटेंड करते हैं, कितना, 35 ईयर। जब हम डैमर बाशा डैम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये इसके साथ साथ तरबेला डैम जो इसका लाइफ जो है वो भी लोकेटेड डाउन स्ट्रीम जो है 35 ईयर वो भी एक्सटेंड हो जाते हैं इसके साथ साथ। कंट्रोल फ्लड डैमेज बाय द रिवर इंडस डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग हाई फ्लड, ये इसके साथ साथ डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग हाई फ्लड जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं हाई फ्लड जो आ रही है इंडस रिवर में। ठीक है, ये इसकी यूनिक है। उसके बाद हम आते हैं उसकी स्टेक होल्डर जो है, स्टेक होल्डर की तरफ हम आते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन है, जो बंदा है इस डैम के साथ उसका रिलेशनशिप है, वो भी स्टेक होल्डर में आते हैं। जिस तरह एक बंदा है इसका घर जो है वो इस डैम में डैम की एरिया में आते हैं, तो ये भी स्टेक होल्डर में आते हैं। उसके साथ साथ एक टेंडर जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी इस स्टेक होल्डर में आते हैं। उसके अलावा हमारे पास नजर जो है वो बंदा जिसने स्ट्रगल किया है इस डैम के लिए,
कोशिश किया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है दिन रात, ये भी स्टेक होल्डर है इस डैम का। ठीक है, तो मैंने आपको परसेंटेज में मैंने यहाँ लिया है, क्योंकि इसके साथ हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग हमारे पास जो है 33.5 है। अनस्किल्ड वर्कर जो है कंस्ट्रक्शन मोस्टली हमारे पास वो बंदे जो अनस्किल्ड वर्कर है वो हमारे पास 10.5 है। स्किल वर्कर हमारे पास जो है 16.5 है। गवर्नमेंट सर्विस हमारे पास जो है 19% है। बिजनेस हमारे पास जो है 15.5 है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हमारे पास जो है वो 4.7% हमारे पास इसमें आते हैं। तो ये हमारे पास है स्टेक होल्डर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं इसकी बेनिफिट की तरफ हम आते हैं। कहा इसका बेनिफिट किया है इस डैम की। जिस तरह हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एक मेगा स्ट्रक्चर, हम मेगा प्रोजेक्ट हमारे पास है, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके साथ साथ हम इनकी बेनिफिट हम देखेंगे, मीन दैट एडवांटेज हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम डिसएडवांटेज हम वो भी हम देखेंगे। अगर हमारे पास एक मेगा स्ट्रक्चर है उसका एडवांटेज ज़्यादा है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस देंगे और वो जल्द अज जल्द हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर एक प्रोजेक्ट हमारे पास है उसका डिसएडवांटेज ज़्यादा है, इफेक्टेड ज़्यादा है, तो वो हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बेनिफिट जो है उन पर हम आते हैं। ठीक है, द जनरेशन ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी विल हेल्प टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग टैरिफ। जिस तरह हमारे पास जो है हम अगर हमारी कंट्री में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीपली हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम जो एक्सपोर्ट अनदर कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे तो इस पर जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि हमारे पास बिजली अवेलेबल है तो हम क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा टैक्स जो है वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाती है। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ऑयल एंड सेविंग एंड फॉरेन एक्सचेंजिंग। जिस तरह हमारे पास ऑयल हम एक्सचेंज करते तो अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती तो इसकी वजह से हमारा जो ऑयल एक्सचेंज है वो इसमें कमी आ रही है। ठीक है, इंपोर्ट हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं एक्सचेंज करने के लिए सर्विस, तो ये इसका हमारे पास रिलेशनशिप फॉरेन कंट्री से वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा रिडक्शन ऑफ लोड शेडिंग बाय एडिंग। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अभी तक लोड शेडिंग आ रही है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उनके साथ वन स्टेज में हम ऐड कर सकते हैं 2160 मेगावाट वन स्टेज में। अगर हम टोटल की बात हम करेंगे जनरेटिंग 12.22 बिलियन यूनिट पर एनम, हमारे पास टोटल जो है वो हम ऐड कर सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी से 12.22 बिलियन यूनिट पर यूनिट ओके एनम हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा लोड शेडिंग जो है वो इसमें कमी आ रही है। ठीक है, अच्छा इंक्रीज लेवल। जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है लोकल पीपल जो है ड्यू टू डेवलपमेंट इन न्यू टाउन एंड विद मॉडर्न सिविक फैसिलिटी जो है वो भी डेवलपमेंट हो जाती है। जिस तरह हमारे पास लिविंग लोकल पीपल जो है उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लिविंग लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड हो जाती है, उसकी सिविक मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, उसका लिविंग जो है मीन दैट कि उसमें डेवलपमेंट आ रही है। जिस तरह लोकल पीपल हमारे पास जो है मॉडर्न सिविक फैसिलिटी में इंक्रीज आ रही है इसमें। ठीक है, उसके बाद जब हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके साथ साथ पाकिस्तानी पीपल जो है इनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, जब हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे या प्रेजेंट में एज वेल एज फ्यूचर में पाकिस्तानी पीपल जो है उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी प्रोवाइड हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इस डैम में मटेरियल की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो भी खुद ब खुद डेवलपमेंट उसमें आ रही है। उसके साथ साथ लोकल एरिया पॉपुलेशन जो है उसकी सोशल इकोनॉमिक जो है वो भी डेवलप हो जाती है। ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमिक ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी। जब पाकिस्तान में चीप इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है लोकल पीपल जो है वो भी इस चीप इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, तो इसकी वजह से पाकिस्तानी पीपल जो है वो इंडस्ट्री में या लोकल पीपल जो है वो गुड स्पेशली एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री में। वो हमारे पास जो गुड है वो खुद भी तैयार करती है
यूज टू लोकल एंड स्पेशली एक्सपोर्ट गुड मेक, वो गुड क्वालिटी की गुड जो है वो एक्सपोर्ट करती है इन अदर कंट्री को, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है प्रोजेक्ट विल क्रिएट इनहेंस द टूरिज्म। इसके साथ साथ अगर हम ये प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म अपॉर्चुनिटी जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है इसके साथ साथ। तो ये हमारे पास है एडवांटेज है, ठीक है। तो एडवांटेज हमने स्टडी किया है, इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है इस कंपेयर टू डिसएडवांटेज। तो ये है इसका डिसएडवांटेज मीन दैट के इफेक्टेड जो है कि उसने कितना एरिया इफेक्टेड किया, कितना पीपल जो है वो इफेक्टेड हो जाती है इस डैम की वजह से, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली हम इफेक्टेड पीपल हमारे पास इफेक्टेड विलेज हमारे पास जो टोटल है वो 31 हमारे पास है। 31 विलेज जो है वो इफेक्टेड हो जाते हैं इस डैम की वजह से, ये हमारे पास डिसएडवांटेज में आती है, ठीक है। नंबर ऑफ हाउस जो है वो इफेक्टेड हो जाए 3100 हमारे 100 हमारे पास जो है नंबर ऑफ हाउस वो इफेक्टेड हो जाती है। पॉपुलेशन इफेक्टेड जो है वो 28,500 जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास जो है सबमर्ज, जो इस डैम में सबमर्ज हो जाते हैं 2660 एकड़ एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाती है एग्रीकल्चरल लैंड जो है, ठीक है। ये हमारे पास डिसएडवांटेज में आती है। एरिया अंडर रिजर्वायर में एरिया जो आ रहा है 252 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास जो है वो इस डैम में अंदर आ रही है, एरिया जो है अंडर रिजर्वायर में। लेंथ ऑफ की एच हमारे पास सबमर्ज यूनिट जो है वो हमारे पास 100 किलोमीटर। सस्पेंशन ब्रिज इलेक्ट्रिक हमारे पास जो है टेलीफोन लाइन हमारे सेक्टर ये हमारे पास है, ये भी इफेक्टेड हो जाते हैं। प्री हिस्टोरिक रॉक हमारे पास जो सेविंग कार्विंग हमारे पास 33,000 हमारे पास जो है ये भी इफेक्टेड हो जाते हैं। हिस्टोरिक डीसी हाउस जो है ये भी इफेक्टेड हो जाती है। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है इस डामाकाशा डैम की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं उसकी हमने पहले लोकेशन भी हमने एक्सप्लेन किया था, इंट्रोडक्शन भी हमने एक्सप्लेन किया था, उसकी स्टेक होल्डर जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमारे पास जो है स्टेक होल्डर हमारे पास जो है हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद यूनिक हमारे पास जो है साइलेंट फीचर जो है इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उस डैम की यूनिक जो है इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे पास जियोलॉजी लैंड हमारे पास जो है, सॉइल पैटर्न हमारे पास जो है, उसके साथ साथ हमारे पास वाटर जो है, क्लाइमेट हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास जो है वाटर जो है, ठीक है, फ्लोरा फौना हमारे पास जो है, सेफ्टी हेल्थ हमारे पास, सोशल इकोनॉमिक्स इशू हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास जो है फिश स्टॉक हमारे पास जो है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ये किस चीज़ में आ रही है, ये हमारे पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हमारे पास आती है। तो जियोलॉजी में हमारे पास हम चेक करते हैं इस डैम एरिया की हमारे पास यहाँ कौन कौन सी रॉक जो है वो अवेलेबल है। जियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ सर्वे करते हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ कौन कौन से रॉक जो है अवेलेबल है। जिस तरह हमारे पास क्ले है, सिल्ट है, सैंड स्टोन हमारे पास, बोल्डर हमारे पास, डिफरेंट स्टोन जो है वो चेक करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन से पहले वो चेक करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद वो चेक करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी रॉक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। सो डिफरेंट रॉक हमारे पास जियोलॉजी में है, तो वो स्टडी करते हैं, उनके मुताबिक वो प्लान बनाते हैं कि ये हमारे पास यहाँ कौन कौन से रॉक जो है वो सबमर्ज हो जाते हैं, कौन कौन से रॉक जो है वो हम इस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सॉइल पैटर्न। तो सॉइल में बेसिकली हमारे पास जो है सॉइल में इस डैम का सॉइल हम चेक करते हैं, ठीक है, कि यहाँ कौन कौन सी सॉइल जो है अवेलेबल है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, तो हम स्टडी करते हैं। तो इंडस रिजर्वायर हमारे पास यहाँ कौन कौन सी सॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस तरह हमारे पास जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियर जो है, जिस तरह हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है हम इस डैम में हम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एज ए जियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करते हैं, इस डेटा की वजह से वो क्या करते हैं, जिस तरह डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं
कि ये डैम जो है ये हमारे पास सेफ है या नहीं है। जिस तरह परमिबिलिटी टेस्ट जो है हम करेंगे डैम के लिए, सोइल में हम जो टेक्निकल फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम परमिबिलिटी टेस्ट हम करेंगे। तो इन अदर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट जो है हम परफॉर्म करेंगे, डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी सॉइल अवेलेबल है। ऐसा न हो कि हमारे पास सीपेज आ रही है, हमारे पास ये डैम जो है ये सेफ है या नहीं है, इनमें कौन कौन से टाइप सॉइल अवेलेबल है। ठीक है, सो ये बेसिकली सॉइल पैटर्न हमारे पास जो है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वाटर की क्लाइमेट के बारे में हम ये जानते हैं कि क्लाइमेट क्या चीज़ है। क्लाइमेट में बेसिकली हमारे पास विंड जो है हम पूरा साल हमारे पास जो है हम एवरेज लेते हैं कि यहाँ कितना विंड आ रही है, या इसका ईयर जो है ईयर पैटर्न जो है इसके लिए हम टेबल हम ईयर का एवरेज लेके हम टेबल हम बनाएंगे। तो उसके मुताबिक हम ये डैम जो है हम सेव करेंगे। ठीक है, कि यहाँ क्लाइमेट किस तरह है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वाटर के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इस डैम की वाटर जो है जो अवेलेबल है, इसका केमिकल इंजीनियर जो है वो आते हैं यहाँ, वो टेस्ट करेंगे कि इस वाटर का जो कलर है वो किस तरह है, इसका जो टेस्ट है वो किस तरह है। ये वाटर हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या ये वाटर जो है हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, या ये वाटर किधर से आ रही है, कितनी % ये आ रही है। ठीक है, इंडस रिवर से आ रही है, जिस तरह ग्लेशियर जो है वो पिघल हो जाती है, वहाँ से माउंटेन जो है वो ग्लेशियर जो है पिघल हो जाते हैं, ये वाटर वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, हम वाटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल में आते हैं। फ्लोरा फौना हमारे पास जो है हमारे इस डैम में कितनी नेचुरल प्लांट हमारे पास जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। जिस तरह हमारे पास स्पीशीज जो है, हमारा एनिमल जो है वो भी इस इफेक्टेड हो जाते हैं इस डैम की वजह से। ठीक है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारा जितना प्लांटेशन एरिया जो है वो इस डैम में आती है, तो हमारा इसके साथ साथ हमारा जो प्लांटेशन है, हमारे पास ये इस तरह एनिमल जो है वो भी हमारा एनिमल जो है स्पीशीज हमारे पास जो है वो भी इफेक्टेड हो जाती है इस डैम की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेफ्टी एंड हेल्थी जो है ये भी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम ऐसा डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये हमारे पास सेफ हो। ऐसा ना हो कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा सिस्मिक जोन आती है, सिस्मिक आ रही है, ऐसा ना हो कि हमारा डैम जो है वो डैमेज हो जाती है, हमने इस पर अरबों डॉलर हम खर्च करेंगे, ऐसा ना हो कि हमारा डैम जो है वो डिमोलिश हो जाती है। ठीक है, तो हम इनके लिए हम सेव करने के लिए हम एक्यूरेट मटेरियल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सोशल इकोनॉमी इशू हमारे पास है, लैंड एक्वायर, लैंड राइट हमारे पास है, कंपनसेशन हमारे पास जो है, उसके बाद रिसेटलमेंट, लेवहुड इशू हमारे पास है, ये हमारे पास इशू में आती है। ठीक है, फिश स्टॉक हमारे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हमारे 1:3 रेशो हमारे पास आती है। ठीक है, रिजर्वायर वाटर वेलफेयर हमारे पास 2 फिश हेटेरेज हमारे पास जो है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सोशल इकोनॉमिक इशू में हमारे पास आ रही थी। तो ये बेसिकली हमने जो जितनी भी हमने एक्सप्लेन किया था ये वाला टॉपिक, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हमारे पास आती है कि ये हम किस तरह मैनेज करेंगे। ठीक है, इस पर इतना ज़्यादा ईयर आ रही है या विंड जो है ये आ रही है, तो टेम्परेचर हम चेक करेंगे कि इस एरिया का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये किस तरह हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है, जिस तरह इंसेक्ट हमारे पास जो है, इंसेक्ट जिस तरह बी हमारे पास है, एंट्स हमारे पास जो है, तो हम ये चेक करेंगे कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में ये हमारे पास आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इशू आ रही है, तो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था आपके सामने। ठीक है, तो शायद आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास इनफ्रीक्वेंटली इनकंसिस्टेंट इशू हमारे पास जो है। ठीक है, चेन एंड डाउन स्ट्रीम वाटर क्वालिटी इफेक्टेड ऑन रिवर टेम्परेचर, उसकी वजह से हमारा जो रिवर का टेम्परेचर है वो भी इफेक्टेड हो जाती है। न्यूट्रिएंट लोड हमारे पास जो है,
उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ हेवी मेटल एंड मिनरल हमारे पास जो है, चेंज एंड डाउन स्ट्रीम मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर बेड, डेल्टा कंस्लाइन एंड अल्टरेड सेडिमेंट लोड, रिडक्शन ऑफ बॉडी फिश पॉपुलेशन डेसलाइन हमारे पास जो है, ये बेसिकली हमारे पास इशू में आती है। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली हमारे पास सिस्मिक का जो प्लेन है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सिस्मिक का प्लेन है। तो हम ये भी चेक करते हैं कि यहाँ कितना सिस्मिक आ रही है। ठीक है, कितनी परसेंट आ रही है सिस्मिक। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सिस्मिक जोन है इस इलाके का, डायमर बाशा डैम वह जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उस इलाके का सिस्मिक जोन का जो प्लेन है हम ये चेक करेंगे। उसके साथ साथ एक नज़र बात हमारे पास जो है सेफ्टी के लिए कि हमारे पास इस इलाके में, तो ये हमारे पास डैम का टोटल प्लेन जो है। ठीक है, तो हम इस तरह डायमर बाशा डैम जो है टू माउंटेन के बिटवीन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, तो वाटर यहाँ हम स्टोर करेंगे रिजर्वायर में, तो यहाँ वाटर आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है मैंने पहले आपको बताया था कि उसके बाद हम लावा जो है मैग्मा, ये भी हम चेक करेंगे इस इलाके में कि हमारे पास ऐसा न हो कि यहाँ मैग्मा आ रही है जिसकी वजह से हमारा डायमर बाशा डैम जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, हम इस पर अरबों डॉलर पैसे हम खर्च करेंगे, ऐसा न हो कि हमारा जो डैम जो है वो इफेक्टेड हो जाती है इसकी वजह से। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वन टॉपिक जो है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। तो मेरा वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है, हम बस यहाँ स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।